Hello everyone. So we are going to start about the subject for the IIT JAM. Okay, and the subject that we are going to discuss about the solid state physics, solid state physics, solid state physics, devices and electronics. So in this subject, the subject is about the basic core electronics, a link with the physics. Okay, so in this subject, so in this video we will try to cover about the Boolean algebra. Okay, what are the basic Boolean theorems? So basically the theorems are nothing but a method to easily solve the questions on the basis of Boolean algebra. And generally the most commonly theorem is De Morgan's theorem. De Morgan's theorem. Clearly, okay. Next is about the distribution theorem, the consensus theorem. Next is about the consensus theorem. Next is about the consensus theorem. Consensus theorem. So these are the just name is difficult, but the theorem is very easy. The theorems are very easy. Okay. Okay. Next in the electronics part, we will study about the basic. The next topic would be about the binary system. Binary system we are going to study. Binary system we are going to study. So in the binary system, or you can say binary number system, we are going to study. We are going to study about the binary number system. So what is the binary number system? So in the binary number system, we are just study about the what are the binary numbers system we are used to add, subtract. Okay. So basically, how we add the binary numbers, how we subtract the binary numbers. So just about the basics of binary number system. Okay. So another is we also use to another topic we are going to study about the conversion of one system. वन सिस्टम कौन सा सिस्टम? द वन सिस्टम इज नंबर सिस्टम. कौन सा नंबर सिस्टम को? ठीक है जी. So there are different types of number system we have in our topics. So different we have decimal system. Okay, so decimal system, we have octal system, we have hexadecimal systems. So decimal means the base is 10. The base is 10. Octal means the maximum number is 8. And hexadecimal means base is 16. So these so we have to study about the conversion of, if the number is given in the decimal system, how will convert in the octal system. If the number is given in the hexadecimal, how will convert in the octal system. So there are different number of types of questions, but these are questions are very much easy questions you have. Okay, next we will study about the
different logic gate, basic logic gates. Okay, so basic logic gates, ठीक है, basic logic gates like you have AND gate, you have AND gate, you have OR gate, you have NOT gate, you have NAND gate, you have NOR gate, you have XOR gate, you have XNOR gate. So XOR मतलब exclusively OR, XNOR मतलब exclusively NOR. Okay, so tell me, out of these gates, what gates are called as universal gates? So out of these two, NAND and NOR gates are called as universal gates. Universal gates means by help of these gates we can make our different types of logic, from which means from NAND you can easily get your OR gate, you get easily your AND gate, you easily get your NOT gate. So okay, so by the help of NAND and NOR gate you can easily get your XOR gate and XOR by only using the NAND and NOR gates. Okay, so that is the meaning of the universal gate system. Clear? Then we will study about the their truth tables. कौन कौन क्या क्या इसके ट्रुथ टेबल होंगे, ठीक है। ट्रुथ टेबल का मतलब कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के लिए कौन कौन सी आउटपुट होगी। क्लियर? सो देन वी विल स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन। द क्वेश्चन वुड बी कि लाइक यू हैव two gates connected parallelly or seriously, what is the output corresponding to what type of input you have given to that. Okay, so these are some basic things that we will study in the this your electronics part. And further from the electronics part, what are the topic that we will cover for the Boolean algebra, binary number system, conversion of one binary number system. Clear? So these are the topics that we are going to study. Okay, so starting from this first topic, Boolean algebra. Okay, so initially my writing would be somehow, but as we are going to deal with the topic, you are comfortable with my writing. So first of all, write down a heading: Boolean algebra. Boolean algebra. Algebra means how will you do the plus, minus, multiplication and division on the Boolean number. Okay, so first of all, let's start from the basic. Okay, so basic. Note agar note, we call note as another names complement or inverse. Another name for note is complement or inverse. Clear? Like if you have a, what is its complement? It is noted by a bar or a dash. Okay, so this is how you will say how will you note your variable quantity a, and so how will you going to by taking a bar on the variable, that means it is a complement of that number, that is mean it is a complement or inverse of that number. Clear? Okay, so this is one representation. Okay, also a variable in Boolean algebra can take only two values, either 0 or either 1, because in the Boolean algebra, in the Boolean
in the boolean the base is 2 only, which means it has maximum two numbers. Like in the case of you have you have base 10, which means you have number from 0 to 9. So total number would be 10. But in the case of boolean, you have numbers from 0 to 1 only. That means the total number would be 2. Similarly, if I say about the octal number system with the base 8, that contain the number from 0, 1, 2 up to 7. So it means the total number would be 8. So this is the meaning of base. That's how, like, randomly someone asks, you have a base 17 system, 17. So easily you can say you have the numbers from 0, 1, 2 up to 16. So 16 is defined by, how will you define the 16? Okay, so it is defined by 1f. That would be we discuss in the hexadecimal system. Okay, so the total number would be 17 starting from 0. That's why it is 6. Total number would be 70. Clear? So this is how you represent different number system, and what are the total numbers in that number system. This is how we can define. Okay, next. Now here in the next page I will show you, like, if you have a, what is its complement? We define by a bar or a dash. We define by a bar or a dash. So if I say I have a quantity, so a can take the value either 0 or 1. So what are its complement? 0 का complement क्या होगा? 1, और 1 का complement क्या होगा? 0. In the boolean system, 0 मतलब लो का उल्टा क्या होता है जी? लो का उल्टा हाई. अगर हाई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टा मतलब इनवर्स. सो उसका क्या उल्टा होगा? लो. सो क्लियर? आई थिंक द डाउट वुड बी क्लियर. Now if I take further complement, like if I have a bar का बार, ठीक है, a bar का बार, so that means it is same as the original number a. Okay, how will you define a complement का? You have a उसका मैंने क्या किया? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट किया, देन अगेन आई टेक अनदर कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, लाइक अगर आपके पास 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे 1, उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट करोगे, यू विल गेट 0. सो दैट इज सेम एज द ओरिजिनल नंबर. दैट इज सेम एज ओरिजिनल. सो दैट्स व्हाई डबल कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज ओरिजिनल नंबर. क्लियर? नाउ सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर यू हैव ए बी सी डबल कॉम्प्लीमेंट, इट इज सेम एज ए बी सी. ओके, अगर मैं 0 का डबल कॉम्प्लीमेंट करूं, इट इज सेम एज 0. अगर मैं 1 का डबल कॉम्प्लीमेंट करूं, इट इज सेम एज 1. क्लियर? सो दिस इज हाउ द कंसेप्ट वुड बी क्लियर. नेक्स्ट इज AND operation. So now I am only study about the simple mathematical algebra system, not about the logic gates. Okay, so अगर मैं AND की बात करूँ, AND is defined by the multiplying operator. Okay, so 0 and 0, what is output? 0 dot 1 is same as 0. 1 dot 0 is same as 0. 1 is same as 1. Clear? Okay, so in the variable quantity, if मैंने a को AND किया 0 के साथ, you will get a
जीरो, ठीक है। ओके, अगर मैं ए को ए के साथ ऐड करता हूँ, द वैल्यू वुड बी ए, दैट मीन्स आइदर इट इज 0.0, तो उसका आंसर भी क्या होगा 0, ठीक है। और 1.1 करता हूँ तो 1, सो दैट मीन्स जो वेरिएबल क्वांटिटी होगी इट इज सिमिलर लाइक दैट। क्लियर, सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से हियर। नेक्स्ट इज, अगर मैं a.1 करता हूँ, a.1 करता हूँ, तो आंसर वुड बी a, बिकॉज अगर समझने की बात करें 0.0 का आंसर क्या आएगा 0, 1.1 का आंसर क्या आएगा 1, सो दैट दिस आउटपुट डिपेंड ऑन द वेरिएबल क्वांटिटीज जो वेरी कर रहा है। क्लियर है जी। ओके, सो लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक वेरिएबल क्वांटिटी अगर मैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका एंड ऑपरेशन करता हूँ, द आउटपुट वुड बी 0 और 1, द आउटपुट वुड बी 0, बिकॉज अगर एक बार ये 0 है तो ये क्या होगा 1, अगर एक बार 1 होगा तो एक बार क्या होगा 0, तो हमेशा 0 क्वांटिटी एंड ऑपरेशन में आएगी, तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा 0। इंपॉर्टेंट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, ठीक है, these are the very important operations you have. Clear? Now based on that, next we will study about the OR operation. जीरो और जीरो का और करेंगे तो आउटपुट मिलेगी आपको 0, 0 और 1 का और करेंगे तो आउटपुट मिलेगी आपको 1, 1 और 0 का और करेंगे तो आउटपुट आपको मिलेगी 1। वेरी इंटरेस्टिंग, 1 और 1 का और करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा 1, ठीक है। इसका रीजन या इसकी अगर किसी को डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको क्लियर करें। ओके बच्चों, कोई भी किसी किस्म का आपको डाउट आने नहीं देंगे, अगर कोई डाउट रहता भी है यू कैन मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज not to forget to subscribe our channel, that is the Digi Study. Also we are on the Telegram channel as well as on the WhatsApp channel, ठीक है। our Facebook page link is also shared in the description below. Clear? So इसका अगर वेरिएबल क्वांटिटी के साथ देखें, ए और ए का अगर हम और ऑपरेशन करें तो आपको क्या मिलेगा ए, बिकॉज आइदर 0 केस होगा और 1 केस होगा, तो दोनों के केसेस में आपको क्या मिलेगा, जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसी का आउटपुट, जिसका आप और करते हो वही आपको आंसर में मिलता है। क्लियर है जी। ओके, ए और 0, क्योंकि देखिए जब भी 0 के साथ आप और करते हो, the quantity that is varying with the OR operation is always your answer. So here the variable quantity is a, so the answer would be a. Next is a plus 1. Okay, next important observation, जब भी 1 होता है आपका OR operation, the answer would be always 1, ठीक है। और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे ए और ए बार का तो भी आंसर क्या मिलेगा हमेशा 1, बिकॉज एक बार 0 होगा और उसमें कॉम्प्लीमेंट करने पे वन ऑफ द टर्म वुड बी ऑलवेज बी 1, तो 1 का अगर और ऑपरेशन में आ जाए तो हमेशा आंसर क्या होता है 1। क्लियर? ओके, सिमिलरली अगर मैं और की बात करूं, ठीक है, एंड की बात करूं, तो अगर किसी भी एंड ऑपरेशन करते में एक दोनों में से एक क्वांटिटी भी 0 हो जाए तो आंसर हमेशा क्या होता है 0। क्लियर है जी। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हाउ विल यू, सो बताएं व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। सो इन टाइप्स के क्वेश्चन क्या करते हैं, जो भी कॉमन टर्म होगी उनको हम
कॉमन ले लेते हैं। नो इन दोनों में से कौन सी टर्म कॉमन है, कौन सी टर्म कॉमन है, ए, ठीक है। तो आपके पास बचता क्या है, बी और बी बार। एंड यू इजीली नो बी और बी बार में से बी और बी बार का एंड ऑपरेशन क्या होगा, ऑलवेज वन। एक नंबर और उसका बार का इनवर्स का और ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, वन। क्लियर है। सो बेस्ड ऑन दैट ए वन, ए और वन का और ऑपरेशन क्या मिलेगा आपको, ए। क्लियर। फ्रॉम दिस इजिली सी, easily you can say the b term is eliminated, the v variable is eliminated, v term is eliminated, which means the function this can be is same as one variable quantity a. So b is eliminated, so b is of no use, ठीक है। और हम इसको दूसरा नाम बोल देते हैं, b इज रिडंडेंट टर्म। रिडंडेंट मतलब एक्स्ट्रा टर्म, ठीक है। और हम देखेंगे कि ये रिडंडेंट टर्म्स क्यों ऐड की जाती हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन भी आता है इससे आपको, ठीक है। तो रिडंडेंट टर्म कौन सी होती है, द वेरिएबल विच इज एलिमिनेटेड, द वेरिएबल विच इज एलिमिनेटेड इज नोन एज redundant term, is known as redundant terms. क्लियर। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव ए बी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार, ए बी सी बार। क्लियर। So the question would also come, how many, the question is how many minimum number of NAND gates required to implement this Boolean expression, ठीक है। सो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पॉसिबल करेंगे कि कितना हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जहां भी आपको कॉमन टर्म्स लगे वहां पे आप पहले कॉमन निकालें। तो इन दोनों टर्म्स में ए बी इज योर कॉमन, ए बी इज कॉमन टर्म्स। ओके, सो सोल्यूशन की बात करें अगर मैं, सो ए बी बार प्लस ए बी सी प्लस सी बार कॉमन आ गया। तो सी और सी बार का व्हाट इज आउटपुट, वन। क्लियर। सो ए बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। सो प्रीवियस की तरह हो गया, दिस इज योर प्रीवियस क्वेश्चन। सो ए कॉमन आ गया यहाँ से, बी प्लस बी बार, बी प्लस और बी बार क्या होता है आपके पास, वन, इट इज सेम एज वन। क्लियर। सो आंसर वुड बी ए, ठीक है। सो इन द प्रीवियस एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन क्या था आपके पास, ए बी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार का मिनिमाइज एक्सप्रेशन। व्हाट इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन, द मिनिमाइज एक्सप्रेशन is simply a, the minimized expression is simply a, ठीक है। सो इस पूरे फंक्शन को हम सिंपली इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए। सो ए के लिए हाउ मेनी गेट्स वी रिक्वायर, सो ए के लिए यू रिक्वायर ओनली
A is directly a input quantity. A is directly a input quantity. A देखिए आप इनपुट क्वांटिटी कोई भी अगर सर्किट को देंगे, ए देंगे, बी देंगे या सी देंगे, ठीक है, तो आपके पास जो आउटपुट आ रही है, आउटपुट इज लेट्स से इन द बूलियन और इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वी डिनोटेड वाई एज ए ऑलवेज, ठीक है। सो वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली इनपुट, सो इनपुट डायरेक्टली पास कर देंगे हम विदाउट, सो देखिए यू हैव ए कनेक्टेड, ठीक है, सो यू हैव सॉरी सो आपके पास डायरेक्टली आउटपुट आ गई विच इज सेम एज ए, सो यू कैन क्लियरली सी देयर इज नो गेट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द एक्सप्रेशन, सो आई कैन से द आंसर इज zero number of NAND gates are required. NAND gates are required. So this is how the question can be framed from the minimized expression and how many total number of gates we require. So the combination of the questions can happen. So this इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इजीली. सो वेरी बेसिक से होता है, तो ठीक है, हमें क्वेश्चन दे दिया, हम घबरा जाते हैं कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ कैलकुलेशन कैसे करें. सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट. ओके नेक्स्ट करते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हम ना बूलियन अलजेब्रा का जो पार्ट है, जो बेसिक हम सीखते हैं जनरली विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ हम अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं और साथ साथ ही हम इसमें थ्योरम भी पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेसिक मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जनरली हम किसके थ्रू करते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज minimize a plus b a plus c. सो पहले हम कन्वेंशनल मेथड देखेंगे, फिर इसका दूसरा मेथड भी देखेंगे, ठीक है. फर्स्ट मेथड, सो डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे इसका. तो पहले आप कन्वेंशनल मेथड देख लीजिए. कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, डायरेक्टली सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है. सो मल्टीप्लिकेशन का मतलब दोनों ब्रैकेट्स को ओपन किया हमने, ठीक है. सो a डॉट a प्लस a डॉट c प्लस b डॉट a प्लस b डॉट c. क्लियर, कोई डाउट इसमें? ओके. सो व्हेन यू ओपन दिस a into a, it is written as a plus tell me ac plus you can write it as ab, ठीक है. ये हम BA को AB क्यों लिख सकते हैं? BA is same as AB. There is no difference because the multiplying operator satisfy associative law, ठीक है. So that's how BA is same as AB plus BC. So out of these, which is common expression? A is the common expression. So I can take A as common. So A1 plus C plus P. Clear है जी? Plus BC. Clear? So 1 के साथ कोई भी और ऑपरेशन हो जाए तो हमेशा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है आपका? 1. So it is same as 1.
So can I write easily same as a plus bc? Clear? So a plus b का डायरेक्ट एक्सप्रेशन और मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या मिला, a प्लस बी सी। क्या इसको आप फर्दर मिनिमाइज कर सकते हो? नो। क्लियर? क्या इसको आप फर्दर इजी? ओके। नेक्स्ट इज सेकंड मेथड। सेकंड मेथड यहीं पे कर लेते हैं हम। सेकंड मेथड देखते हैं, शॉर्टकट यू कैन से। सेकंड मेथड डायरेक्टली ऑब्जर्व करें आप, अगर आंसर को ऑब्जर्व करें, डायरेक्टली अगर ऑब्जर्व करें, ठीक है। डायरेक्टली एक्सप्रेशन हमेशा क्या लिखना है, अगर दोनों ब्रैकेट में से एक चीज कॉमन है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, ए, तो उसको डायरेक्टली एक लिख लें ए, और बाकी दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो आंसर वुड बी ए प्लस बी सी। क्लियर? सो कॉमन टर्म राइट as it is and multiply the other terms, ठीक है जी। इसको चेक करते हैं क्या वाकई ठीक है। अगर डायरेक्टली आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एक्स बार प्लस वाई, एक्स बार प्लस जेड, ठीक है, तो पेपर एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम है, ठीक है, तो हम जहां पॉसिबल हो हमारे लिए मुश्किल क्वेश्चंस के लिए हम अपना टाइम डिवोट करें एज कम्पेयर टू इजी क्वेश्चंस पे टाइम डिवोट करने के लिए। तो वैसे तो आप प्रीवियस मेथड, कन्वेंशनल मेथड यूज कर सकते हो, बट उसकी बजाय अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकट से जाएंगे तो आपका काफी टाइम कंज्यूम बचेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स बार इज कॉमन इन बोथ टर्म्स, तो राइट डायरेक्टली एज एक्स बार, देन यू हैव वाई एंड जेड, डायरेक्टली मल्टीप्लाई देम, दैट इज वाई एंड जेड। क्लियर? सो दैट इज योर आंसर। क्लियर? सो बेस्ड ऑन दैट write down the next question please. Minimize the following expression, that is a plus b bar a bar plus b bar, a bar plus b. This is, you have to minimize the expression, okay. So directly अगर हम प्रीवियस का यूज करें तो दोनों में a कॉमन है, तो a को डायरेक्टली और b को b बार से मल्टीप्लाई, ठीक है। सिमिलरली हियर a को a बार से मल्टीप्लाई करेंगे और b को b बार से मल्टीप्लाई। सो बेस्ड ऑन दैट, सो यू हैव a प्लस b इंटू b बार मल्टीप्लाई विद a बार प्लस b इंटू b बार। सो देखिए कितना टाइम बच गया अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है, अदरवाइज आप दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो b और b बार का 0, b और b बार का 0, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या बचा, a प्लस 0 और a बार प्लस 0। तो इन दोनों से क्या मिला एक्सप्रेशन, a इंटू ए बार, और a इंटू ए बार का आंसर क्या आएगा, आंसर इज 0। So this is, by the use of the previous shortcut, we can easily save our
प्रीशियस टाइम इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? सो एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप होमवर्क समझें। तो अगर उस जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो कृपया अपना आंसर या तो डिस्क्रिप्शन में अपनी इमेज पोस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वहाँ पे हमें पोस्ट कर देंगे। जिससे हमें थोड़ा सा ये भी लगेगा कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं और उनको उन बच्चों को हमारी वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही है। ठीक है? सो ये क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज़। minimize expression for minimize expression for a plus b plus c बार। ठीक है? तो आप इसका आंसर पोस्ट कर दीजिए। इसका आंसर मैं कल बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं बताऊंगा। ओके? क्लियर? सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्लीज। ठीक है? सो इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, हमने देखिए इसका रिवर्स भी, अगर आपको कई बार क्या होता है कि ओके, सो इम्पोर्टेंट नोट लिख लीजिए। देखिए, इन द क्लास वी हैव सीन a प्लस बी, a प्लस सी। इसको हमने कैसे राइट किया? a प्लस बी सी। ठीक है? कई बार एग्जाम में हमें क्या जरूरत पड़ती है? उल्टा। ठीक है? कई बार हमें क्या होता है कि मिनिमाइज एक्सप्रेशन दिया होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल एक्सप्रेशन फ्रॉम वेयर। और कई बार जब हम आगे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, कई बार हमें इस एक्सप्रेशन को खोलने की जरूरत पड़ती है। तो लाइक अगर क्वेश्चन आपको गिवन है a प्लस बी सी, तो हमेशा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना a प्लस बी। यू नो हाउ इट कम्स, a प्लस बी और a प्लस सी। इसको हम क्या बोलते हैं? हमने क्या कर दिया? एक्सप्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस एक्सप्रेशन को हम और इस थ्योरम को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। लाइक डायरेक्टली अगर 1 प्लस 2 इंटू 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे? 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 2 1 प्लस 3। क्लियर? where 1 2 and 3 are the variable quantity, where 1 2 and 3 are the variable quantities. Clear? So this is how sometime the minimize calculation can be done easily by this distribution theorem. That's how it happens. We have a question in the, so question है आपका, minimize the expression a plus a bar b, इसको आप मिनिमाइज करना, यू हैव टू मिनिमाइज दिस। देखिए, देखने से ऐसा लगता है कि इसको हम फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो जनरली अगर ऐसी एक्सप्रेशन हो, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 3 डिफरेंट वेरिएबल हो a b और c, तो हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। बट बाय चांस अगर एक वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट है दूसरे एक्सप्रेशन, तो देयर आर चांसेस कि हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखें कैसे। ठीक है? सो यू हैव अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। सो यू इजीली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है? 1 2 और 3 को मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है जी? दिस इज हाउ वी यूज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम यूज की, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। क्लियर? सो a plus a bar, what is expression would be 1, so answer is 1 into a plus b। so answer क्या है आपके पास? a plus b, so that is the minimized expression। so this is how the question है। ठीक है? मैं आपको एक तरह के काफी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा। आप इसकी प्रैक्टिस, आपकी जो भी कॉलेज की बुक होगी आप उससे प्रैक्टिस कर लेना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है? तो आपको मैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक इन द नेक्स्ट you have a plus a bar b bar,
मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन, मिनिमाइज करो उसको, मिनिमाइज करो। तो मैंने बताया ना, ठीक है, मैंने बताया ना आपको, जब भी बार होगा तो आपका चांसेस होते हैं किसके, मिनिमाइज करने के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार, ए प्लस बी बार। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाई हमने, 1 + 2 × 3, 1 + 2 और 1 + 3। क्लियर है जी, क्लियर है ना? ओके, so based on that a plus a bar, what is expression, 1। ठीक है, और a plus a bar, a plus b bar, so this is how the questions can be come from this minimize expression। क्लियर, ओके, जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज ए बार प्लस ए बी को करना है हमने मिनिमाइज। देखिए इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आप डायरेक्टली बहुत इजीली वे में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिस। क्लियर, सो ए, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए बार प्लस ए, ए बार प्लस ए बार प्लस बी। तो ए प्लस ए बार का आंसर क्या रहेगा आपके पास, 1, और 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा जो भी वेरिएबल क्वांटिटी, दैट इज आंसर इज ए बार प्लस बी, आंसर इज ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बार प्लस ए बी बार, ए बार प्लस ए बी बार का मिनिमाइज करें तो सोल्यूशन इजीली, अब तो आपको प्रैक्टिस और कंफर्टेबल हो गए होगे इस फील्ड में, आप तो डायरेक्टली आप देखने से ही आंसर बता सकते हो। ए बार प्लस ए, ए बार प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या लगाई हमने, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का यूज किया, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम किसका यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो आंसर वुड बी, दिस इज एक्सप्रेशन इज 1, सो आंसर इज ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी हैपन। ओके, सो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्दर discussion. So till now this is the introduction class. Hope you enjoy.